Dear students, watch this video till end and be the master of chemistry and enjoy. Best of luck. Good morning, students. Today we will study about decomposition reaction. In last video you have studied about chemical reaction, combination reaction. Students, if you like my videos and you got benefited by my videos, then you are suggested to share this video to your friends so that they also may got benefited, and subscribe my channel to get first notification of my all videos with upload. Thank you. Now we are going to study about decomposition reaction. First of all, what is decomposition reaction? A reaction in which a substance breaks down into two or more compounds or substances. That reaction is called decomposition reaction. Like, look over here. AB is a single substance and it decomposes to form A and B, two substances, and not only two but two or more. Like here, ABC is a single substance which decomposes to form A, B and C, three new substances. Now students, before going to examples of decomposition reaction, we are going to know some questions which are asked in board exam. And first question is, why are decomposition reactions considered as opposite to combination reaction? As you have seen in last videos, what combination reaction? In combination, what occurs? Two or more substances combines to form a single compound. Okay, but in decomposition reaction, a single substance breaks down into two or three new substances. This is why decomposition reaction is considered as opposite to combination reaction. आप लोगों ने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, और यहाँ पे क्या रहा है, उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है. एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से ज्यादा न्यू सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो रहा है. तो आंसर आप देखिए, इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन two or more substances combine to form a single compound, while in a decomposition reaction one substance breaks down into two or more substances. This is why decomposition reaction is considered as opposite to combination reaction. Note, यहाँ पे आपको एक नोट है, most of decomposition reactions are endothermic. In combination reaction you have studied, most of combination reactions are exothermic, heat release होती है, but in decomposition reaction no heat is released, we have to provide heat to make this reaction. Now इस पॉइंट पे भी क्वेश्चन आता है, why are most of decomposition reactions endothermic? जो most of decomposition reaction endothermic होते हैं वो क्यों होते हैं, why? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा था, मोस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज होती है. वहां पे भी क्वेश्चन आया था व्हाई, तो आपने क्या आंसर दिया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए और बी के बीच में एक बॉन्डिंग होगी, जुड़ेंगे, कंबाइन होंगे तो फॉर्म करेंगे सब्सटेंस. और अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री जब भी बॉन्ड फॉर्म होगा, मोस्ट ऑफ टाइम जब भी बॉन्ड कोई फॉर्म होता है
तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड नहीं हो रहा है, बट ये देखिए ए बी कंपाउंड कोई बना है, बॉन्ड बना है, ये बन चुका है बॉन्ड दोनों के बीच में, और यहाँ पे हो क्या रहा है, डिकम्पोजिशन में दोनों सेपरेट हो गए। इट मींस बॉन्ड क्या हुआ, इनका टूटा है, बॉन्ड ब्रेक हुआ है। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब ब्रेक होगा ही नहीं ऐसे, उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी तब जाके बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक, जैसे दो चीजें जुड़ी हूं, उनको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स कहां से आएगा, एनर्जी से आएगी। तो किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी उसको देनी पड़ती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है। मोस्ट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। व्हाई? उसका आंसर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व विद द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स व्हिच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। एंड क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हिच इज एन एक्सोथर्मिक। ऐसा आपने कॉम्बिनेशन में भी देखा था, मोस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, बट उसका एक एग्जांपल आपसे बताया था मैंने, अगर क्वेश्चन में आ जाता है गिव एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हिच इज एंडोथर्मिक। वो ज्यादा मोस्ट ऑफ तो एक्सोथर्मिक होते हैं, बट एंडोथर्मिक का क्या बताया था, बर्निंग ऑफ नाइट्रोजन। तो वैसे यहां पर भी मोस्ट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं। बट आपको एक ऐसा एग्जांपल देना है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो बट एंडोथर्मिक ना हो करके एक्सोथर्मिक, उसमें से हीट रिलीज हो। तो आपके एनसीईआरटी बुक में ये गिवन है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल वेस्ट टू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। मतलब जो वेजिटेबल वेस्ट है उसको हम कहीं फेंक देते हैं, पिट वगैरह में, कंपोस्ट वगैरह में स्टोर कर देते हैं। तो जब धीरे धीरे वो डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होके क्या बनता है, उससे मेन्योर बनता है। और इसमें ये डिकम्पोज हुआ बट इसमें हीट रिलीज होती है, इसलिए एक्सोथर्मिक है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन on the basis of energy required for decomposition. Decomposition reactions are of three types. First one is thermal decomposition, and second one is photolytic decomposition, and third one is electrolytic decomposition. ओके, मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें किसी सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए हमें जो हीट एनर्जी देनी पड़ रही है वो हीट के फॉर्म में अगर हम दे रहे हैं, थर्मल मींस हीट, अगर हीट के फॉर्म में एनर्जी हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं रिएक्शन को कराने के लिए, तो वो रिएक्शन कौन सा होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन होगा थर्मल, हीट की रिक्वायरमेंट की। और ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिनको करवाने के लिए अगर हम हीट नहीं, एनर्जी को सनलाइट के फॉर्म में प्रोवाइड करवा रहे हैं, मतलब सनलाइट एनर्जी उनको चाहिए। फोटो मींस तुरंत समझ जाया करो सनलाइट। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। और कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं डिकम्पोजिशन के, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो डिकम्पोज होने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी उन्हें चाहिए होती है। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं किसी सब्सटेंस के डिकम्पोजिशन के लिए, तो ऐसे डिकम्पोजिशन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एंड फर्स्ट वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन। But before study about thermal decomposition, we have to study about 4 important anions. Decomposition of 4 important anions, and that 4 anions are, first one is carbonate. Okay? इसी सीक्वेंस में आपको लर्न करना है, इस सीक्वेंस में आपको लिख रहा हूं, बता रहा हूं। कार्बोनेट, क्लोरेट, CCl, ClO3, CO3, ClO3, कार्बोनेट, क्लोरेट, सल्फेट एंड नाइट्रेट। ये 4 नेगेटिव आयंस के डिकम्पोजिशन आपके एनसीईआरटी बुक्स में है। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं आपको इसके लिए इजीएस्ट ट्रिक बता रहा हूं, वो आपको शायद ये ट्रिक बुक में नहीं मिलेगी। देखिए, पहले तो आप इसी सीक्वेंस में लर्न करो, कार्बोनेट, क्लोरेट, ओके, सल्फेट एंड नाइट्रेट। देखिए, कार्बोनेट, क्लोरेट, सी से स्टार्ट होने वाले, पहले इन दोनों को,
फिर सल्फेट एंड नाइट्रेट लास्ट में। और कार्बोनेट पे -2 चार्ज होता है, क्लोरेट पर -1 होता है। अगेन -2 -1, ठीक है, चार्ज भी याद रखना। अब सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होगा तो क्या होगा। देखिए, अच्छा कार्बोनेट कौन सा, मेटल कार्बोनेट, M फॉर मेटल, ठीक है। किसी भी मेटल कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होगा, अच्छा डिकम्पोजिशन कैसा करवा रहे हैं, थर्मल, तो यहां में लिखना होगा हीट और ये डेल्टा का साइन बना दीजिए। तो मेटल कार्बोनेट का जब भी डिकम्पोजिशन होगा तो ये दिमाग में रखना, मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये न लर्न कर दो, ठीक है, ये आपको लर्न होना चाहिए हर हाल में, बहुत अच्छा तरीका है। देखिए, मेटेलिक कार्बोनेट को डिकम्पोज करोगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, यही आप दिमाग में रखिए। अच्छा, अब यहां पे देखो सिंगल O2 O3 कुछ भी हो सकता है, इसकी मेटल की वैलेंसी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। देखिए, अब इसके एग्जांपल में, इसका एग्जांपल ले लो, आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, ठीक है, कैल्शियम एक मेटल है, CaCO3 का डिकम्पोजिशन होगा तो क्या बनेगा, ये मेटल है, मेटल का ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बैलेंसी आप चेक करते रहना भाई, +2 -2 बैलेंस है तो 1 एटम से काम चलेगा, प्लस और क्या बनना है, CO2 गैस। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट एंड CO2 गैसेस स्टेट। अब आप बैलेंस कर लो, एक बार चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं, 1 कैल्शियम 1 कार्बन and 3 oxygen, 2 and 1 3 oxygen, it is balanced already. Students, this example is the example of decomposition of limestone. And remember, limestone, chalk and marble all have the same molecular formula, that is CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये इसका एग्जाम्पल, इस पे मैं स्टार लगा दे रहा हूं, इट मींस ये यही आपके एनसीईआरटी बुक में है, एक मैं एक्स्ट्रा आपको करवा रहा हूं जिससे कि ये क्लियर हो जाए आपका ये ट्रिक। देखिए, अगर हम सोडियम कार्बोनेट का क्या करवाएं, डिकम्पोजिशन, क्या कुछ गलती हो रही है, बिल्कुल हो रही है, बैलेंसी चेक करो भाई। कार्बोनेट की क्या है, -2, तो -2 इस पे आएगा, इसकी सोडियम की होती है +1, 1 मींस नथिंग, ठीक है, Na2CO3 गिव्स आउट व्हाट, सोडियम मेटल है यहां पर, इसका ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहां फिर से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला सेट कीजिए, जो भी आपका न्यू सब्सटेंस बनता है पहले उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेट करो। सोडियम का 1 इस पे आएगा, ऑक्सीजन का 2 इस पे आएगा, मतलब 1 मींस नथिंग, तो Na2O, ये ध्यान रखना इन सब बातों का। बैलेंस है 2 सोडियम 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, 2 and 1 3, दिस इज बैलेंस्ड। नाउ दूसरा आयन लेते हैं क्लोरेट, ClO3, बट कैसा, मेटेलिक, किसी मेटल के साथ क्लोरेट का जो कंबाइन होकर कंपाउंड बना है उसका जब डिकम्पोजिशन होगा तब क्या होगा, देखो, मेटेलिक क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। देखो, गैस को आप जे भी है अपवर्ड, आप फिर एरो से भी डिनोट कर सकते हो। इसका एग्जांपल लेते हैं, हमारे बुक में एनसीईआरटी में आपको किसका दिया है, पोटेशियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन, CClO3। देखिए, पोटेशियम पे +1 और क्लोराइड पे -1 बैलेंस्ड है, ठीक है। डिकम्पोज करवाइए इनको, क्या बनेगा, यहां से इस ट्रिक को याद रखो, मेटल क्लोराइड KCl बैलेंसी 1 1 प्लस ऑक्सीजन गैस। देखिए, अब देख लीजिए कि क्या एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है, 1 पोटेशियम 1 क्लोरीन ऑक्सीजन 3, यहां पे 2 है, मिस्टेक।
तो जब भी बैलेंस करना हो ना, जहां पे ऑड आ रहा हो, जिस साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ऑड आ रहा है, तो पहले इसको इवन बनाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो। लेकिन याद रखना ये पूरा एक है तो 2 से यहां मल्टीप्लाई होगा बाहर से। तो अब देखिए 2 पोटेशियम हो रहा है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 क्लोरीन यहां से हो चुका है, और 2 3 6 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 3 2 6 ऑक्सीजन। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ये स्टार साइन इस पर, ये आपके एनसीईआरटी बुक का है। एक एग्जांपल और हम बात कर लें कैल्शियम क्लोरेट की, इसका डिकम्पोजिशन करना है तब क्या होगा। देखिए कैल्शियम क्लोरेट का अगर डिकम्पोजिशन करवाया जाए तो क्या होगा, पहले तो आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेट करो। देखिए कैल्शियम पे +2 होता है और क्लोरेट पे क्या होता है -1, तो इसका 2 इस पे आएगा, इसका 1 इस पे, मतलब CaClO3 होल ट्वाइस। आप जरा देखिए क्या क्या हमें बनाना है इसके अकॉर्डिंग। मेटल का क्लोराइड बनाना है तो यहाँ पे कैल्शियम मेटल है और क्लोरीन, पहले बैलेंस ही चेक करो। कैल्शियम पे +2 इस पे आएगा, इसका 1 इस पे, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, प्लस। और क्या बनना है, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, आप देखो पहले बैलेंस है इक्वेशन, 1 कैल्शियम 1 कैल्शियम 1 क्लोरीन, नहीं यहां से मल्टीप्लाई इसमें हुआ 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, ओके, एंड 2 3 6 ऑक्सीजन, ये रहा आपका 6 ऑक्सीजन। हाँ देखिए 4 आयंस के बारे में आपको समझा रहे हैं। पहला आपका हो चुका कार्बोनेट एंड क्लोरेट, और ये दोनों में क्या खासियत थी कि ये सिंपल है। सिंपल मतलब जो एक के साथ हो रहा है वही सबके साथ हो रहा है, लेकिन इन दोनों में 2 कंडीशंस हैं। तो पहले हम सल्फेट की बात करते हैं। अगर आपके पास मेटालिक सल्फेट है और उसका डिकम्पोजिशन करवाना है, ठीक है, तो क्या बनेगा, याद रखना मेटल के साथ क्या, मेटल का ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होनी है, ओके। बट ये देखो ये एनी मेटल के लिए है, यहां पे कोई भी मेटल हो तो यही रिएक्शन होगा। बट आयरन के केस में एक स्पेशल कंडीशन हो जाएगा, अगर ये मेटल स्पेशली कौन सा हो, आयरन का सल्फेट होगा अगर, ठीक है, और यही आयरन सल्फेट वाला ही आपके बुक में गिवन है, इस पे स्टार, ये आपके एनसीईआरटी बुक में इसी का एग्जांपल है। तो देखिए हाँ ठीक, और क्या क्या बनेगा भैया, यहां पर मेटल ऑक्साइड मींस आयरन ऑक्साइड, बिल्कुल सही है, प्लस इग्नेट आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल बनेगा गैस, प्लस ये जो ऑक्सीजन था ना, ऑक्सीजन की जगह क्या हो जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो जाएगा। इतना सा फर्क है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। क्या कोई और मेटल है सल्फेट के साथ तो क्या होगा, मेटेलिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। बट अगर आयरन रहेगा तो मेटेलिक ऑक्साइड मींस आयरन का ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो जाएगा। बैलेंस करो। एक और पॉइंट याद रखना, यहां रिएक्टेंट साइड में जो ये आयरन होगा +2 वैलेंसी शो करेगा, बट प्रोडक्ट साइड में ये आयरन +3 वैलेंसी शो करेगा, ये ध्यान रखना। तो मतलब इनको पहले बैलेंस करो, सही है कि गलत। देखो इसका 3 इस पे लगेगा, इसका 2 इस पे लगेगा, क्लियर। ऑक्सीजन का 2 होता है इस पे लगेगा, आयरन का 3 इस पे लगेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेट। यही ध्यान रखना है। 2 बातें कि एक तो यहां जो ऑक्सीजन था वो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। दूसरा यहां रिएक्टेंट साइड में +2 रहेगा आयरन की वैलेंसी, बट प्रोडक्ट साइड में आयरन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, +3। ये आपके लिए एक्स्ट्रा कंडीशन इंपॉर्टेंट है, यही आपके एनसीईआरटी बुक में है। और जो नॉर्मल कंडीशन वाला है कि कोई भी मेटल होगा, मेटेलिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनेगा, उसके 2 एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज हमारे पास कॉपर सल्फेट हो, कॉपर +2 इसका +2 बैलेंस है, तो इसके अकॉर्डिंग कॉपर का ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। अच्छा ये भी गैस ही है सल्फर डाइऑक्साइड। अब जरा देखिए बैलेंस है कि नहीं, कॉपर +2 ये +2, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में चेक कर लिया करो। नाउ 1 कॉपर 1 सल्फर 1 सल्फर, ऑक्सीजन कितने 4, और यहाँ पे 1 3 5,
प्रॉब्लम इज हेयर, मीन्स जहां पे ऑड है पहले वहां से इवन बनाओ। अब देखो 2 कॉपर हो रहा है तो यहाँ आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 2 से, ठीक है। अब चेक करो 2 कॉपर और 2 से मल्टीप्लाई सल्फर में है 2 सल्फर, तो मतलब यहाँ भी हमें सल्फर में मल्टीप्लाई करना होगा, 2 सल्फर हो गया। ऑक्सीजन के देखो 2 4 जा 8 है इस साइड में, 2 1 जा 2 यहाँ से, 2 2 जा 4 यहाँ से एंड 2 यहाँ से, क्या 8 हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। अब ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस्ड है। इसमें सल्फेट की अगर हम बात करें इस बार +2 सॉरी -2 2 बैलेंस है। नाउ मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनना है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बननी है प्लस ऑक्सीजन गैस बननी है, ठीक है। बैलेंस करो, देखिए ये ऑक्सीजन फिर फंसाएगा सेम इसी जैसा होगा 2 2 एंड 2। नाउ दिस इज बैलेंस्ड। एंड लास्ट में जो आपका 4th है स्पेस कम पड़ जाएगा, now third one has completed, last one is nitrate -1। अगर मेटल नाइट्रेट है हमारे पास और डिकम्पोजिशन करवाना है, ये जो मेटल यहाँ आया अगर ये +1 हो, एक कंडीशन हो सकती है मेटल +2 वैलेंसी वाला हो तब नाइट्रेट का कंपाउंड हो उसके साथ, और एक कंडीशन है ये 3 वैलेंसी वाला मेटल हो और उसके साथ नाइट्रेट का कॉम्बिनेशन हुआ। इनके डिकम्पोजिशन में क्या होने वाला है? देखिए ट्रिक है ये, क्या है? मेटल नाइट्रेट 1 वैलेंसी वाला डिकम्पोज होगा तो क्या बनाएगा? मेटल और NO2 यहाँ फिक्स रहेगा, ये एक मेटल के साथ NO2 फिक्स रहेगा, प्लस अब हमारे पास बचा क्या है? ऑक्सीजन गैस बची है, ठीक है। अगर 1 वैलेंसी वाला होगा तो मेटेलिक नाइट्राइल ऑक्साइड और 1 मोर ऑक्सीजन, बट अगर 2 वैलेंसी वाला है, ठीक है, तो फिर तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाइट्रेट नाइट्रोजन यहाँ से हट जाएगा, मेटल का ऑक्साइड बनेगा, क्लियर, मेटल ऑक्साइड। अब ये NO2 अलग आ जाएगा एंड ऑक्सीजन गैस, क्लियर। एंड अगर +3 वैलेंसी है तब भी यही होगा, व्हाट? मेटल का ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस। अच्छा, इस NO2 को कहते हैं नाइट्राइट, ठीक है। अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, अब हम एग्जांपल देखते हैं अपने +1 वैलेंसी वाला मेटल है। तो देखिए सोडियम +1 वैलेंसी है, सोडियम नाइट्रेट, ठीक। इसके अकॉर्डिंग क्या? मेटल एंड NO2 प्लस क्या? ओनली ऑक्सीजन, ठीक है। बैलेंस करो, एक सोडियम एक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं? 3 इधर, बट यहाँ पे 2 एंड 2 4 हो रहा है, बैलेंस करना पड़ेगा। तो वह इधर ऑड है तो 2 से करो। अब फिर से सबको चेक करो, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे सिंगल है, 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सॉरी सोडियम, 2 सोडियम। अब देखो नाइट्रोजन 2 1 जा 2 और ऐसे 2 1 जा 2 नाइट्रोजन हो गया, क्लियर। ऑक्सीजन 2 2 जा 4 ऑक्सीजन यहाँ पर और 2 यहाँ पर 6 हो रहे हैं इधर, 2 3 जा 6 इधर भी है, बैलेंस्ड है। एक और देखते हैं सिंगल वाला पोटेशियम नाइट्रेट का। देखिए क्या? मेटल का नाइट्रोजन के साथ और O2 KNO2 प्लस ओनली ऑक्सीजन बनाना है ना 1 वैलेंसी वाले में, तो बैलेंस करो 2 2 हो गया बैलेंस। अब एग्जांपल बात आती है +2 वैलेंसी वाले की। +2 वैलेंसी में PbNO3 लेड नाइट्रेट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी बुक में इसी का एग्जांपल, ठीक।
और यहाँ पे फिर देखो लेड की वैलेंसी होती है +2 बट नाइट्रेट की कितनी होती है -1। मतलब यहाँ से 1 इस पे आएगा, यहाँ से 2 इस पे आएगा, किस पे, पूरे नाइट्रेट पर। और वो लिखने की जरूरत नहीं। मतलब ये क्या बना लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। इसका डिकम्पोजिशन आप करिए, क्या होगा भाई, प्लस वाले के कार्बन 2 वाले के मेटल का केवल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड मतलब लेड ऑक्साइड प्लस NO2 एंड लास्ट में ऑक्सीजन गैस। पहले लेड को देखो +2 -2 बैलेंस्ड है यहाँ पे, ठीक है। पूरे इक्वेशन को देखिए, 1 लेड 1 लेड और नाइट्रोजन कितना है, यहां से 2 नाइट्रोजन, हमारे पास सिंगल नाइट्रोजन है, ठीक। चलो मान लेते हैं 1 मिलकर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ऑक्सीजन कितना है, 2 3 जा 6। ऑक्सीजन कितने पास है हमारे पास, 2 4 6 7 ज्यादा हो गए। मतलब पहले तो हमें क्या करना था, नाइट्रोजन को छोड़कर ऑक्सीजन मेन होता है, सबसे पहले ऑक्सीजन को किया करो, ठीक है। यहाँ पे ऑड है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, इवन बनाओ उसको। तो अब लेड इधर 2 हो रहा है तो इधर भी 2 करना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा देखिए 2 लेड 2 लेड, ठीक। और नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 यहां से 2 यहां से, दो तरफ से मल्टीप्लाई, 4 नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को पहले 4 करो। अब बात आती है ऑक्सीजन की। देखो 2 3 जा 6 एंड 2 जा 12 ऑक्सीजन। तो 2 यहां से 4 2 जा 8 यहां से एंड 2 यहां से, 12 हो रहे ना, ठीक है। एक हम बात कर लेते हैं +3 वाले के, है ना। तो एल्यूमिनियम की वैल्यू होती है +3, तो हम एल्यूमिनियम नाइट्रेट की बात कर लेते हैं। पहले यहीं पर इसकी वैलेंसी 3, तो इसकी 3 वैलेंसी इस पे आएगी, नाइट्रेट की 1 यहाँ पे, इसका कोई मतलब नहीं। मतलब एल्यूमिनियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बना, AlNO3 होल थ्राइस। अभी देखिए बनना क्या क्या है हमारे पास, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनना है, ठीक। और क्या बनना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बननी है, और क्या बनना है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब देखिए बैलेंसी करिए जरा। पहले तो यहां क्या ये इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेट है, नहीं। एल्यूमिनियम का 3 यहां, ऑक्सीजन का 2 यहां, ठीक, Al2O3। अब देखिए यहां पे 2 एल्यूमिनियम हो गया, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 2Al 2Al। नाइट्रोजन कितने हैं भैया, 3 यहां से हुआ, 3 जा 3 और 2 जा 6 नाइट्रोजन, ठीक। ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, 3 3 जा 9 2 जा 18 ऑक्सीजन होना चाहिए हमारे पास। क्या 18 ऑक्सीजन है, 3 और 6 2 जा 12 है ना, 6 2 जा 12 यहां से हुआ, 2 यहां से 14। यही गड़बड़ कर रहा है, ये जो इवन ऑड हो रहा है, ऑड को पहले इवन बनाए, ठीक। तो मतलब 4 एल्यूमिनियम हो गया। अरे यार, अब ये 4 एल्यूमिनियम करना पड़ेगा हमें यहाँ, ठीक है। अब फिर से नाइट्रोजन डिस्टर्ब करेगा, है ना। देखिए नाइट्रोजन कितना, 3 और 3 4 जब 12, तो भैया 12 नाइट्रोजन करिए आप, ठीक है। और ऑक्सीजन की बात करें तो 4 3 जा 12, 3 जा 36। अब देखते हैं 2 3 जा 6 ऑक्सीजन यहां से एंड 12 कितना, 2 जा 24 यहां से, ये 30 हुआ, 6 करना है तो 3 यहां लगा दीजिए। अब ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अभी हमने किया थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हमको फोटोलिटिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक, और इलेक्ट्रोलिटिक में आएगा ही इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।